ગીતાબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીકાંત અંકલ સાહેબ જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનंदजी दीपिका जी, आज અહીંયા हिंदी દાદા में ભગવાન इतना કે ध्यान છે रखने का। भैया आपके पास કે આત્મા મળવાથી પ્રકૃતિઓ જે એનલાર્જ થઈ જાય છે તે હવે ના થાય. रेफरेंस એનલાર્જમેન્ટ रेफरेंस બુક નંબર 1 પાનો નંબર 33 તારીખ 30/8/71 વડોદરા. નીચે પેજ 12 of 38. ओके બોલો. હા हाँ અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે આત્મા મળવાથી પ્રકૃતિઓ જે એનલાર્જ થઈ જાય છે તે હવે ના થાય. તેવડો ને તેવડો જ ફોટો રહે. એનલાર્જમેન્ટ હવે ના હોય. પ્રકૃતિ બદલાય નહીં, તેની તે જ રહે, પણ એનલાર્જમેન્ટ હવે ના થાય. ફોટો વીંટીમાં ગલાય તેવડો લીધો હોય પણ તેનું એનલાર્જમેન્ટ જોઈએ તેવડું મોટું થાય. એટલે આમાં શું કે છે દાદા ભગવાન, એ થોડુંક સમજાવો ને. કે આત્મા મળવાથી પ્રકૃતિ એનલાર્જ થઈ જાય છે તે હવે ના થાય. आत्मा મળવાથી કે આત્મા નહીં મળે? ના મળ્યું? નીચેથી બીજો પેરેગ્રાફ છે. પેજ 12 of 38. सब सबकी संभालो, मैं मेरी खोलता हूँ। એનું બિગિનિંગ કેવી રીતે છે? આજ આત્મા મળવાથી પ્રકૃતિઓ જે એનલાર્જ થઈ જાય છે તે હવે ના થાય. કેટલામો પેરેગ્રાફ છે? નીચેથી બીજો પેરેગ્રાફ. અરે દીપકાનંદજી, આમાં જે પેરેગ્રાફમાં બુક નંબર 1 લખ્યું છે અને નીચે બુક નંબર 23 લખ્યું છે, તો કયું કહેવાય? એક મિનિટ, શું કીધું? આજે નીચે નીચે લખે ને નોટબુક નંબર 23 એમ, અને ત્યાં પાનામાં લખ્યું છે બુક નંબર 1, તો કઈ બુક નંબર ગણવાની? ક્યાં 23 લખેલું છે? નીચે નીચે આપણે નીચે વાંચીએ ને, છેક નીચે. પ્રોબ્લેમ છે. હા એ જ. ઓકે, તમે વાંચો એમાંથી. હું વાંચું? હા હા. આત્મા મળવાથી પ્રકૃતિઓ જે એનલાર્જ થઈ જાય છે તે હવે ના થાય. એનો મતલબ શું થયો કે હવે નથી થતી? हिंदी हिंदी। हाँ सॉरी, उसका मतलब ये होता है कि आत्मा नहीं मिलने से प्रकृति यानी प्रकृति में सब परिवर्तन यानी वो भराती जाती है। आप समझे? नए नए कारण सर्जन होते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि वो नहीं बनती जब नया कॉजेस पड़ते जाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, आप समझे? लेकिन ज्ञान मिलने से अभी वो कार्य होता नहीं है। तो बोलिए अभी आगे, समझ गए इतना? हाँ हाँ हाँ. પણ એ મને એ કોને કે એ એનલાર્જ એટલે એમાં શું થાય? એટલે જસ્ટ આપણે તો હવે જ્ઞાન લીધું છે, પછી એનલાર્જ ओके, ના जो भी થાય. प्रकृति है हाँ नया कारण सर्जन होता है हाँ कि जी, नहीं होता है ज्ञान के बाद? हाँ ज्ञान के बाद अरे ना हो. तो उसका मतलब क्या है? जब ज्ञान नहीं होता है तो अंदर नए कारण पड़ते हैं, वो प्रकृति का एनलार्जमेंट है। नई प्रकृति बनती रहती है। बनती रहती. एनलार्जमेंट यानी बने, नवी बने. नहीं बनती है, उसमें हाँ एडिशन हाँ होता है, હા. नया नया एडिशन होते जाता है। हो હવે સમજણ પડી.
તો ठीक है? તેવડો ને તેવડો જ બરોબર છે સાહેબ, બરોબર. તેવડો ને તેવડો જ ફોટો રહે, એન્લાર્જમેન્ટ हाँ હવે ના હોય. हाँ सही है. હમ. પ્રકૃતિ બદલાય નહીં, એની તે જ રહે, પણ पर એન્લાર્જમેન્ટ प्रकृति હવે ના वो થાય. वो वो क्या बोलते हैं, फीकी पड़ जाती है. હા હા यानी जो बोलते हैं ना, कटिंग एज प्रकृति थी, शार्प प्रकृति थी, હા किसी હા को भी હા काट सकती है, वो हम्म। अब अ, नरम पड़ जाती है, नरम पड़ जाती. हाँ कमजोर हो जाती. कमजोरी नहीं बोलते उसको, सॉफ्ट बोलते हैं. सॉफ्ट. हाँ जी. समझे? हाँ. हम्म. પછી દીપકાનંદજી પેલું એક સમજાવો ને મને, ભાવ નિંદ્રા અને દ્રવ્ય નિંદ્રા. કે ભાવ નિંદ્રામાં કે છે કે દાદા ભગવાન એમાં એવું કે છે, મેં વાંચ્યું છે 2 દિવસ પહેલા, કે સ્વભાવમાં ઊંઘ્યો એટલે એને ભાવ નિંદ્રા કીધી. અને દ્રવ્ય નિંદ્રામાં તો એ સ્વભાવમાં ઊંઘ્યો અને પ્રભાવમાં પણ ઊંઘ્યો. તો આ બેમાં મને આમ થોડુંક समझाओ ना नहीं, जरा. मुझे लेकिन ये आपने कहाँ पढ़ा, थोड़ा वो जानना मैंने जरूरी ये है. आपड़ी आज बुक देखो, में. लेकिन हाँ ऐसा लगता है हाँ कि द्रव्य निद्रा यानी जिनको ज्ञान नहीं है, हाँ हाँ. वे जब सोते हैं तो वो फिजिकली तो सो गए, लेकिन मैं सो गया करके उनको वह मान्यता रहने से वो प्रभव में भी सो गए. आप समझे? हाँ हाँ. क्योंकि मैं सोया ना. आप समझे? हाँ पर એને એ મેં સોયા એમ બોલે એમ રહે એને, પછી પ્રભાવ એટલે એને શું આવે અંદર? प्रभाव का मतलब है नया कारण पड़ता है, હા કારણ પડતા છે. नया कर्म बनता है. નયા કર્મ બંધે છે. એટલે એને દ્રવ્ય નિંદ્રામાં બધા નવા નવા કર્મ બન્યા देखो, થાય. जब आप पढ़ते हैं तो उसका कनेक्शन हमें समझ लेना होता है. महात्मा अगर सोते हैं हाँ तो वह मैं शुद्धात्मा हूं करके जागते हैं और शरीर सोता है. हाँ हाँ. तो अगर उनकी निंद्रा के बारे में अगर बात की होती तो ये बात नहीं आती. आप समझे? हाँ हाँ खुद की माटे ना. लेकिन जिस तरह से आप बताते हैं कि दादा ने बताया कि वो अभी तो सोते हैं लेकिन प्रभाव में भी सोते हैं, उसका मतलब यह है कि सोने वाले को ज्ञान नहीं प्राप्त है, स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं है. समझ गए? हाँ हाँ. इसीलिए ऐसा कुछ भी होता है तो उसको रेफरेंस ठीक से लो, तो आगे पीछे किसी को भी स्टडी करना है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर उसका मतलब नहीं होता है. क्योंकि ये ज्ञानी पुरुष की वाणी वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होती है, तो समझ में आवे बरोबर बात. हाँ. किसी को जैसे कि एक बात बता दो, ये महत्व की है. कोई हिंसक व्यक्ति है तो बारी बारी हिंसा ही करते रहते हैं. वो आके दादा को अगर पूछे कि दादा मुझे अहिंसा का पालन करना है, मैं क्या करूं, तो एक उदाहरण से दादा ने कहा, उनको बोला कि हर रोज आपको 7 चूहे को पकड़ के मारना है. क्या बताया? 7 चूहे को हर रोज पकड़ के मारना है. हाँ, और जिस दिन 7 चूहे नहीं मिलते तो आपको उपवास करना है. जिस दिन 7 चूहे मारे नहीं तो आपको उपवास करना है. उपवास करने का. हाँ. किसको बताया ये सॉल्यूशन? दादा भगवान ने बताया. किसको बताया? किसने बताया? नहीं, दादा भगवान ने वो व्यक्ति को बताया. कौन से व्यक्ति को? फिर से बोलूं? जब बातें होती है तो पूरे ध्यान से सुनना है, नहीं तो इधर की उधर वायर कनेक्ट कर दिया तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है. शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? धड़ाका होता है. ऐसा ही होता है. बरोबर છે. હવે સમજમાં આવ્યું. શું? રેફરન્સ ટુ કોન્ટેક્ટ એટલે બરોબર વાત સમજીને फिर से बताता हूँ, एक हिंसक आदमी है जो बारी बारी हिंसा करता है, ये मेन रेफरेंस.
वो बरोबर आके છે. दादा को पूछते कि मुझे अहिंसा का पालन करना, मैं क्या करूं? हिंसा का पालन करने का है तो मैं तब क्या वो 7 चूहे को मारने कहा, और जिस करूं? दिन 7 चूहे नहीं मारते, कम मारा तो भी उपवास करने का, ज्यादा मारा तो डबल उपवास करने का। डबल उपवास का. आप समझे? હવે સમજી. हाँ, फिर दूसरा एक आया उनके पास, अहिंसा का पुजारी। क्या रेफरेंस? अरे सोचते क्या है, बोला वो तो बोलो। वही अहिंसा का पुजारी। अहिंसा का पुजारी आया वापस. हाँ, वो दादा आके बोलते कि दादा मुझे अहिंसा का पालन करे, मैं क्या करूं? वो दादा बताते हैं, रास्ते में चलते वक्त वो एक छोटा जीव भी, एक चींटी भी आपके पैर के नीचे कुचल ना जाए, ऐसी जागृति रख के चलना। छोटा जीव भी पाँव नीचे ना जाए इतनी. समझ में आया? हाँ. अभी कोई बाद में ये बुक में लिखा है और पढ़ता है, अहिंसा का पुजारी, वो हिंसा वाले को जो जवाब दिया था ना, वो पढ़ता है, वो पागल हो जाएगा। क्या होगा कि दादा ने मुझे 7 चूहे मारने को कहा, मैं तो चींटी तक नहीं मार सकता हूँ। समझ गए? आपको और वो हिंसा वाला अगर वो अहिंसक वाले की दवाई पढ़ लेता है कि दादा भगवान तो चींटी मारने को भी नहीं बोला, वो चींटी का क्या हिसाब है मेरे पैर के नीचे, कितने जीव तो ऐसे ही कुचल देता हूँ मैं। समझ गए? हाँ समझाए. અર્થનો એ થઈ જાય છે. नहीं, ये बात समझ लेना। अच्छा. इसीलिए जब आप पढ़ते हैं ना, तो दादा भगवान ने किसकी बात की है वो समझना जरूरी है। बरोबर છે. तो आपको उस बात से, सत्संग से आपको एक बोध मिलेगा जो हमारे जीवन में काम में आता है. खरी बात છે, साची बात છે. वरना वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो बात गड़बड़ हो जाती है. हाँ. एक वर्ड्स आमથી એમ થઈ જાય તો પણ અર્થનો અનર્થ થઈ જાય. બરોબર સાહેબ, આજે બરોબર સમજાય. એક જ વખત આવું થયું સાહેબ. સોરી સાહેબ, હવે फिर નહીં से થાય. बताता हूँ, एक आप्त सूत्र था. हाँ जी. तो दादा भगवान ने बताया, शब्द शब्द को तोल तोल के उसको फिल्टर करना पड़ेगा. बरोबर છે. एक आप्त सूत्र था, 638 या ऐसा कुछ था, पता नहीं है. तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी जो वाणी निकलती है उसको बड़ा सोच समझ के उसको नापना है, क्या बात निकलती है. तो हमें शब्द शब्द में हमारी गलतियां पता चलेगी, उसको सुधारते जाएंगे. हमारा काम क्या है? सुधारना है. वो वाणी बोलते नहीं है, बरोबर. समझे? लेकिन जो वाणी निकलती है उसे पूरा आत्मा को स्पर्श करके, जो दादा अपनी वाणी के लिए बताते हैं, ऐसा पूरी जागृति के साथ हमें रहना है. ठीक है? हाँ साहब, भूल થઈ ગઈ, હવે નહીં કરું આવી ભૂલ. अरे भूल तो क्या सबसे होती है, लेकिन ये हमारा सत्संग, दादा का सत्संग, ये हमारा सत्संग, ये दादा का सत्संग है कि हमें दादा की बात समझने बैठे हैं. बहुत गहरी बात है. ऐसा 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 करके उसको निकाल नहीं देना है, नहीं तो बात अर्थ का अनर्थ हो जाए, ऐसा पता है. सच्ची बात. हाँ. नहीं साहब, હવે આ ભૂલ નહીં થાય સાહેબજી. जय सच्चिदानंद जी. पता नहीं जी. जय सच्चिदानंद जी अंकल. जय सच्चिदानंद. ये पता नहीं जी, वो कविराज का पद है ना, अवे छब छबिया नहीं करवा तरवानो, तो उसमें वो एक लाइन है, कविराज ने बताया कि जब उद्गल की कीमत घटेगी तब मुक्ति की तलब बढ़ेगी. तो उसमें पुद्गल की कीमत घटी कब कहला जाएगा, उसके बारे में थोड़ा समझिए. व्यवहार का आग्रह होता है ना, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, आप ये ऐसा नहीं करते हैं वो गलत है. क्रिया का आग्रह, उसको क्रिया जड़ बोलते हैं. हाँ. समझे? हाँ. ओके. वो क्रिया जड़ हो गए, वो क्रिया के संबंध में ही उलझते रहते हैं और लोगों से भी उलझते रहते हैं. वो कौन सी लाइन थी बताइए आपने?
જ્યારે कौन सी लाइन थी? पुर्तगालनी कीमत हाँ तो ठीक लाइन में है, पता है। नहीं ठीक है, तो निकालो तो सही ना। हाँ ओके, याद है, आप जो बता रहे थे ना, हाँ क्या कहता हाँ है? ત્યારે પુર્તગાલની तो उसका मतलब क्या होता है? पुद्गल यानी रिलेटिव, वर्ल्डली, लौकिक मान्यता, उसकी कीमत जब घटेगी यानी उसकी वैल्यू हमें समझ में आएगी कि ये तो लोक मान्यता है, तब हमें मुक्ति की तलब लगेगी कि सही बात समझकर मुझे मुक्त होना है। अर्जुन जी, हाँ और फिर एक बात ऐसी है कि क्या बोला जाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे मन में क्या चलता रहता है वो बहुत महत्व का है। इसीलिए कहा होठ को सिवड़ा दो, यानी बाहर का जो बड़बड़ करते रहते हैं ना, वो थोड़ा बंद होता है, तो अंदर की वाणी जो हमारी चलती रहती है, भाव, वो हमें पता चलेगा। इसीलिए वो दिव्य चक्षु से अंदर से पता चलता है। वो दिव्य चक्षु बुलवा दो, यानी वो अंदर वो चलेगा, फिर हमारा अंदर की वाणी तक लक्ष्य होगा। ओके ओके हाँ हाँ समझ में आ गया, मतलब हाँ 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 समझ में आ गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी बहन? जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। હમણાં મેં તમને ક્લિપ મોકલી just a few minutes ago. માર પડે પછી હિંસક ભાવ છૂટે 223rd નું આવેલું હતું. So उसका मतलब क्या है कि हमारे मन वाणी, एक मिनट मुझको, हाँ, जब मार पड़ती है तब हमें पता चलता है कि हमसे कुछ हिंसा हुई थी, जिसका आज हमें मार पड़ा। ओके तो बोले अभी ये मार नहीं खाना है। अगर मार नहीं खाना है तो हिंसक भाव से छूटो। हिंसक भाव से हिंसक क्रियाएं बंद होगी, हिंसक क्रियाएं बंद होगी तो फिर मार खाना नहीं पड़ेगा। आज जो मार खाते हैं वो हमसे जो पहले हिंसा हुई है उसका परिणाम है। ठीक है, वरना मार नहीं खा सकते। भाव तो हिंसक भाव छूटे એટલે સમજીએ નહીં કે માર પડે પછી જ ખબર પડે એવું એ नहीं खबर पड़ी। शान ठिकाने नहीं आती है ना। मार पड़े हिंसक भाव किसको कहते हैं कि लोगों को दुख देते हैं, लेकिन लोगों को दुख देने का परिणाम क्या आता है? हमें मार पड़ती है। जब मार पड़ती है तब समझ में आता है कि मुझसे किसी को दुख हो गया। ठीक है, मुझसे किसी को दुख हुआ है तभी कोई मुझे दुख देगा, वरना ऐसे ही आसमान से तारा टपकेगा नहीं। समझ गए? तभी संपूर्ण अहिंसक होने की भावना होती है। कुछ भी हो, मन वचन काज से किसी को भी दुख ना हो। समझाने के लिए भी अगर थोड़ा गुस्सा होते हैं तो फिर उसे एक स्टेप आगे जाते हैं कि ये भी गलत है, ये सही नहीं है, और उसका भी करेक्शन होगा। आप समझे? So हिंसक भावમાં કોઈનું કશું ખરાબ લાઈક કોઈના માટે કઈ ખરાબ ભાવ થઈ ગયો કે એ જ હિંસક કે ભાવ પણ એમાં આવી ગયો। હિંસક ભાવ એટલે અંદર થોડુંક પણ તમને થયું એ પણ એ તમને
પૂછવું જોઈએ અને ત્યારે ખબર आपकी પડે हिंसक क्रिया, किसी को भी दुख देने की क्रिया भाव के बगैर हो नहीं सकती। भाव का मतलब है मन में ऐसा अभिप्राय रहना कि मारना चाहिए। હા ठीक है, હા तो वो क्रिया भाव के बगैर तो होगी नहीं। तो क्रिया से हमें भाव का अनुमान होता है। अनुमान होना यानी एक्सट्रापोलेट करते हैं ना, હા હા विदाउट कॉज देयर कैन नॉट बी एनी इफेक्ट। બરાબર अगर हिंसक वायलेंट एक्टिविटी हो रही है तो वायलेंट भाव, वायलेंट ओपिनियन होना ही चाहिए। હા 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 मैथमेटिशियन इतने कैसे स्टक हो नहीं जाते हैं? नहीं 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 हो मैथमेटिशियन तो मगर 1 + 2 3, 3 + 4 7 सीधा फटाफट जवाब ले लेते हैं। एनालिटिकल मगर माइंड होता है। हाँ, हाँ बोलिए। सो अब ज्ञान के बाद हमें अब भाव नहीं रहे, राइट? मगर ये अभी जो हुआ है, अभी जो पास हो रहे हैं, जो जीवन में आता है, वो मेरी पहले मिस्टेक की थी, उसका उसे रिजल्ट द्रव्य भाव बोलते हैं। उसे हाँ? द्रव्य भाव बोलते हैं। द्रव्य भाव बोलते हैं। सुनाई नहीं देता है? किसको द्रव्य भाव बोलते हैं? आज जो होता है वो ज्ञान के बाद, अच्छा ओके यानी डिस्चार्जिंग भाव। बराबर समझी। बराबर ठीक है, हाँ हाँ वो कॉज नहीं डालते हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर जागृति नहीं रहती तो हम छूटते भी नहीं, छूटते भी नहीं। हाँ जागृति क्योंकि वो अंदर से भाव यानी अंदर से वो ओपिनियन है और उसको हमने कुछ नहीं किया, करेक्शन नहीं किया। हाँ हाँ हम भूलने वाले नहीं है, हम भाव करने वाले नहीं है। मन वचन काया किसी और का है, लेकिन वो हाँ। व्यवहार यानी कीर्तिबेन का व्यवहार ठीक नहीं होता है, तब तक आप मुक्त नहीं होते। हमको देखना समझ है गए? वो। हाँ देखना हाँ, है भूल हमारी भूल को देख। इसीलिए कीर्तिबेन नॉर्मल हो गए तो आप मुक्त है। लेकिन अभी कीर्तिबेन नॉर्मल नहीं है, वो लास्ट लाइफ में नॉर्मल होंगे, तब तक की हमारी यात्रा है। हाँ समझे? वो दिखाने के लिए क्या करना, क्या कमी है, क्यों नहीं दिखाई देता है हमें? क्या नहीं दिखाई देता? वो हमको कि ये भूल हुई, वो लाइक अरे मुझे भूल देखनी है, देखनी है। सामने कुछ होता है तो दिखाई नहीं देते। कहाँ दिखाई नहीं देते? तो नदी भाई बोलते ये क्या सामने है? गीता बहन बोलती है क्या आपके सामने है? उम्मी बहन बोलती है क्या सामने है? जो सामने है वो क्यों नहीं दिखाई देता है? देयर इज समथिंग रॉन्ग। समझ गए? ये बाहर का आवरण बताया, अंदर का आवरण है। वो सब आवरण हटेंगे तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि तो सामने ही है। इसीलिए हम क्या करते हैं, दादा से सुबह में प्रार्थना करते हैं, उनसे शक्ति मांगते हैं कि दिन में जो जो मेरी गलतियां खुली होती है वो सभी को मुझे देखना है, अच्छे से देखना है और उसका दिल से प्रतिक्रमण करना है। दादा आप मुझे शक्ति दो। तो देखने की शक्ति भी मांगते हैं और उसको माफी मांगने की भी शक्ति मांगते हैं। आप समझे? ये क्या है? ये व्यवहार दृष्टि से मैं कीर्तिबेन हूँ, उसका पुरुषार्थ है। क्योंकि व्यवहार दृष्टि से मैं 100% कीर्तिबेन नहीं हुआ हूँ। अगर आप 100% हो गए तो कीर्तिबेन 100% नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल या नॉर्मल के कारण सेवन करते हैं, यानी कि अगर कीर्तिबेन से 100 गलतियां होती है तो आप मैथमेटिशियन है तो हिसाब तो निकाल सकते। 100 गलतियां होती है तो कितनी गलतियां आप देख पाते हैं, और देखने के बाद कितनी गलतियों का प्रतिक्रमण करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि 100 गलतियां हुई, लेकिन आपको गलती का एहसास शायद 50 का ही हुआ। यानी आपको पता चला कि 50 गलतियां हुई,
हाँ और 50 जो गलतियां हुई तो प्रतिक्रमण तो मैंने 10 का ही किया। देखा ही 40 देखने के बाद भी प्रतिक्रमण रह गया और 50 भूल तो दिखाई नहीं दी। आप समझे? हाँ 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 इसीलिए हम क्या कहते हैं, दादा मुझे अपनी दिखाना, मेरी गलतियां दिखाना, मुझे देखना है। मुझे देखने के बाद मुझे सभी गलतियों का प्रतिक्रमण करना है, क्योंकि प्रतिक्रमण न होना वो प्रकृति दोष है। प्रकृति दोष है। वो क्या है, किसी ने वॉमिट किया तो वो तुरंत साफ कर लेते हैं, अपने आप को करना है। वैक्यूम नहीं करते घर में। हाँ हाँ अगर कुछ गिर गया किचन में तो हर रोज साफ करना पड़ता है, दिन में 2-3 बार साफ करना पड़ता है। जितनी बार किचन का यूज किया तो आप उसको सफाई करते ही है। हाँ उसकी जागृति है हमारे, लेकिन अंदर के भाग में ठीक है, उसकी क्या जरूरत है, किसको पता चलेगा, आप समझे। लेकिन उसका भी धीमे धीमे सीरियसनेस हमारी बढ़ती कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये मुझे मोक्ष में जाने के लिए बाधक है, ऑब्स्टेकल है, लेकिन मुझे चुपना है। ठीक है, हाँ नक्की करवानुं बहु स्लो स्टेडी बट फर्म, जल्दबाजी नहीं करनी। हाँ हाँ जल्दबाजी करेंगे तो इमोशनल अटैक आएगा, इमोशनल अटैक आएगा तो फिर गोलियां खा के सो जाना पड़ेगा। हाँ वो काम का नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं। स्लोली स्टेडीली, टोटल सीरियसनेस, रिस्पॉन्सिबल एंड फॉर श्योर। यानी जहां भी है वहां से हमें कोई हिला नहीं सकता। और तभी जो दादा भगवान ने बताया है कि हम हमारी कोई भी गलती को देखने का चूकते नहीं है, क्योंकि हमारा निश्चय कितने अवतारों से इसके पीछे ही लगा हुआ है। और अगर कोई गलती दादा भगवान ने अंदर वाले प्रकाश करते हैं, दिखा देते हैं, तो मैं उसका प्रतिक्रमण कभी चुकता नहीं। उसकी हमें खुमारी रहती है, रौफ नहीं दिखाते, लेकिन खुमारी है, क्योंकि वो हमारी सीरियसनेस के लिए। बट वो खुमारी एरोगेंस नहीं लाता, वो खुमारी ह्यूमिलिटी लाता है। ओके, ह्यूमिलिटी लाता है। यस, ठीक है। हाँ बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय Goodbye. सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मतलब धीरानंद से जो सत्संग किया उससे बहुत ये हुआ, और मैंने गलती अपनी लड़की की जमाई की गलती में निकल रहा था, वो बाद में सब एनालिसिस किया रात भर, तो मुझे सब पता चला कि ये मेरी गलती है। एक्चुअली क्या है कि मेरे अकाउंट में जो पैसा है वो भी मैं निकाल नहीं सकता, समझे ना। क्या क्या तो उसको क्या मेरे अकाउंट में जो क्या मेरे अकाउंट में जो पैसा, बैंक में जो मेरे अकाउंट में जो पैसा है, ओके, वो भी मैं उठा नहीं सकता। समझो उठाया तो वहाँ मैसेज पहुंच जाता है वहाँ पे। हाँ, लेकिन क्यों उठा नहीं मतलब सकते? क्योंकि उन लोग को एक इम्प्रेशन पड़ गई है दिकरी जमाई को, क्या पापा घर में तुम खर्चा करता है, ऐसा मतलब ये ऐसा होता है, समझे ना। तो उसकी वजह से मैसेज। हाँ, और भी बहुत सारी उन लोग स्ट्रिक्ट भी है, लड़की है जमाई भी बहुत स्ट्रिक्ट, तो उसकी वजह से गलती उनकी मैं मुझे ऐसा लगा कि मैं बाद में पता चला कि मैं उनकी बहुत गलती देखता हूँ, उनका दोस्त देखता हूँ। और रात भर मैंने प्रतिक्रमण किया तो आज बहुत अच्छा रिजल्ट आया मेरे पास। उन लोग बहुत अच्छे से बात की मेरे साथ, और मुझे भी बहुत अच्छा आनंद रहा। मतलब ये हीरानंद जी ने कहा कि ये सब आप बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, वो तो, लेकिन पता नहीं प्रकृति में मेरी ऐसे है कि मैं टॉप लेवल की थोड़ी बात मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं ये सब पूछता हूँ, समझे ना। हाँ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, तो मतलब ये क्या, घर को जीतना है, घर के फैमिली मेंबर को जीतना है, उनको
बहुत ये सब उन्होंने बहुत हिरणानंद जी ने समझाया मुझे, तो पता चला। लेकिन फिर भी प्रकृति में ऐसा है मुझे कि ये सब बारीक बातें हैं ना, वो सब समझनी अच्छी लगती है। और आप तो पुत्र से बातें करने से मुझे बहुत फायदा होता है, समझे ना, प्रोग्रेस भी हो रहा है। लेकिन वो रात भर प्रतिक्रमण किया तो मैंने एनालिसिस किया ये कि सब कहाँ, तो मुझे बहुत बारीक सब दिखाई दिया कि यहाँ सब गलती है, यहाँ गलती है, समझे ना। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए कि ये 14वीं हफ्तावाणी की बात कुछ नहीं कि नहीं है, 13वीं 14वीं ऐसे, समझे ना। देखो, आपको जो पूछना है, आपको जो अभ्यास करना है, यानी उसको क्या बोलेंगे, अध्ययन करना है, वो आपको करते रहना है, वो अलग बात है। लेकिन हमारे नजर के बाहर किसी को भी दिखाई दे ऐसी गलतियां होती रहती है तो उसको जाने मत दो। यानी कभी न कभी आपने गलत अपने, वो पैसे तो आपके ही है ना बैंक में, कि वे लोग डालते हैं में आते हैं बैंक में, आपके अकाउंट में वो लोग डालते हैं पैसा। नहीं, मेरा खुद का पैसा भी मैं नहीं उपाड़ सकता हूँ, समझे ना। तो मतलब उपाड़ सकता, उठा सकता हूँ, लेकिन तकरार हो जाती है कि आप ये फिजूल खर्चे करते हैं, ऐसा सब, समझे ना। लेकिन कहीं पर आपने फिजूल खर्चे किए होंगे तभी तो वो बोलते हैं ना। हाँ हाँ, वो सही है। तो वो क्या सोचते हैं कि ये खर्चा करने की जरूरत नहीं थी, तो पापा ने ऐसा बेकार में खर्चा क्यों किया। पैसे तो इतने बहुत सारे है नहीं, और ऊपर से ये बेकार खर्चा करते रहते हैं, तो ठीक नहीं है ना। हाँ सही बात है। तो वो एक क्या बोलते हैं, एक ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं और आपको अलर्ट करते हैं। वैसे पैसे तो आपके ही है, आपको हक है उसका उपयोग करना, लेकिन उन्होंने एक क्या बोलते हैं कि एक अभिप्राय बैठ गया। अरे नहीं, वो अभिप्राय ऐसे ही तो बैठता नहीं है ना, कुछ भी ऐसे ही तो बोलेंगे नहीं, आप समझे। समझ हाँ, आपको लोगों को विश्वास देने, देखो आपके ही पैसे है, अगर वो ऐसे ही खत्म हो गए, उसका उपयोग ढंग से नहीं होता है, तो वो सही है कि गलत है। फिर आपको जरूरत पड़ती है तो किसी को, यानी उनको ही बोझा आएगा ना। सही बात है। आपका फिजूल खर्चा कहाँ होता है, अगर आप बता सकते तो एक दो बता सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन जो जिनको, जिसके लिए उनको ऐसा लगता है कि आप बेकार खर्चा करते हैं। सही हाँ? बात है। फिजूल खर्चा तो होता है ऐसा, मतलब हाँ कारण वगैरह ऐसा कुछ कभी हाँ, अपनी तो जरूरत पड़ती है, लेकिन उनको क्या, नहीं, अगर मुझे जरूरत है समझो, लेकिन वो ये उन लोग को बोलता है ये सब यूजलेस थिंग है, ऐसा, क्या क्या तो उसकी वजह से थोड़ा झगड़ा हो जाता है। क्या 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 यूजलेस थिंग है। समझो कुछ भी, इसलिए समझो कि एक कुछ एक एक घर में एक एग्जाम्पल दो ना, एक एग्जाम्पल दो तो पता चले ना। हाँ समझो, मुझे दुकान में अगर कलर करना है तो फिर ये सब क्यों लाते हैं, ऐसा ये सब, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, अच्छा है ऐसा ही ऐसा, समझे ना आप। तो फिर मैं उन लोग को कि तुम लोग को एक छोटा खर्चा अलग करते हैं, तो आप ऐसा उसके बाद उसकी वजह से थोड़ा हो जाता है, समझे ना आप। क्योंकि वो आपके पास, सॉरी मैं वो ज्यादा व्यक्तिगत नहीं पूछना चाहता, लेकिन आपका नॉर्मल जीवन तो चलता रहता है ना ढंग से। हाँ नॉर्मल जीवन से चलता है, लेकिन मुझे क्या देखता है कि मैं उन लोग को देखता हूँ कि उन लोग फिजूल खर्चे कितने करते हैं, मेरे क्या जमाई करते है, हैं? समझो, उन लोग फिजूल खर्चे करते हैं, तो उसके बारे में मैं अगर उनको पूछा ना, तो फिर उन लोग ऐसा झगड़ा हो जाता है, समझे ना। तो मैं लेकिन बोलता हूँ कि आप फिजूल ऐसा अकाउंट कितना खर्चा अकाउंट करते आपका है, बैंक अकाउंट आपका है। हैं। हाँ मेरा खुद का है। हम्म,
और वो लोग आपसे उसकी अच्छा वजह से। कमाते हैं। नहीं बात सही है, लेकिन वो आपसे अच्छा कमाते हैं। हाँ हाँ, अच्छा उनकी इनकम होती है। आपकी कमाई इतनी अच्छी नहीं है। आपकी मेरी है कमाई मतलब 10-15 हजार कमा लेता हूँ। हाँ नहीं 10 वो महीने, वो समझे ना। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि वे ऐसा रोक टोक क्यों करते हैं? क्योंकि आप जो मेहनत करते हैं उससे जो आपकी कमाई होती है, तो आप उसको ढंग से उपयोग करें। उनका हाँ हेतु लेकिन यह है। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोग आड़ा ही कर रहे हैं इससे। हाँ, लेकिन एक बात है, वो जो खर्चा करते हैं उनके बारे में आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हाँ वही उसके क्योंकि बारे वो में, तो अच्छे से कमा भी लेते हैं ना। इसलिए उसके बारे में होता है झगड़ा। लेकिन तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन बाद में तो सब सेटलमेंट हो जाता है, समझो ना आप, ये ज्ञान से। लेकिन अब ये सब प्रतिक्रमण करने से बहुत फायदा हुआ। ऐसे दिन भर, हाँ, प्रतिक्रमण हर रोज आधा पौना घंटा तो मैं कल पूरा कंटिन्यूस मैंने 8-5-6 घंटा किया, समझो ना। तो वो उसकी तो वजह अच्छा से, है। तो उसकी वजह से आज बहुत अच्छी घर में अब उन लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं मुझे। तो ये कहने का तो है। मतलब ये है, तो वो तो सब, ये तो दादा के ज्ञान की वजह से होता है। लेकिन ये मेरा, ये थोड़ा ऐसा है कि मुझे ये सब बातें अच्छी लगती है। बड़ी 13वीं 14वीं हफ्तवानी के ऐसे बारे में हीरन आनंद जी बोल रहे थे कि आप ये सब बात बंद करो, ये सब, समझे ना आप? उसकी वजह वो से। वो एक अपेक्षा से बात समझनी है कि शायद वो इसलिए कह रहे हैं कि आपका ये सामान्य रोज बरोज के व्यवहार में झगड़ा होता रहता है, तो पहले उसको हैंडल करो। ठीक है, वो बंद होता है, लेकिन ये आप जारी रखो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके पर भी ध्यान रखो। हाँ वो तो रहता ही है। ये इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ऐसा नहीं करना। नहीं वो तो वजह से, लेकिन उन लोग आज अल्टीमेट 5 आज्ञा है। लेकिन आप ये बड़ी बातें, ऐसे मैंने 1-2 महात्मा से बोला कि बड़ी बड़ी बातें करने से, लेकिन वो पता नहीं मुझे वो अच्छी लगती है बातें, समझे ना, आपसे बात करने की। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, बस उसका कोई वही। प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है ना कि दादा भगवान को, दादा भगवान का हाथ दादा है, उंगली दादा है। दादा भगवान की उंगली पकड़ी तो वो दादा है। हाँ दादा उंगली भगवान के उंगली बाल पकड़े तो वो दादा है। तो है ही ना, वही सब तो दादा ही है। दादा भगवान के पैर पकड़े तो वो दादा है। वो भी दादा ही है, चारों ओर दादा है सब। हाँ, और मैं अगर बोलता हूँ कि नहीं आप उसका सर ही पकड़ो, आप क्या बोले, समझे? क्या बोले? मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कि आप केवल दादाजी का सर पकड़ो, सिर पकड़ो, समझ में आया उसका मतलब? हाँ दादा का स्वरूप 360 डिग्री है। 360 डिग्री। कहीं से भी आप दादा को पकड़ेंगे तो आप दादा के हृदय तक पहुंचेंगे। हाँ आप मतलब समझे? उनको, हम्म, उनको जो समझना मेन वस्तु है कि दादा का मूल स्वभाव, दादा के पास जो रहे थे वो भी समझ नहीं पाए कोई कोई। लेकिन जो दादा को सिर्फ देखा वो पूरा समझ लिया, ऐसा वो मेन वस्तु है कि दादा वो का जो विकल्प नहीं करना है समझना। हमें, वो विकल्प नहीं करना है। जैसे कि अगर कोई ऑलरेडी, क्या बोलते हैं, डिग्री हासिल करके बैठे हैं, उनको थोड़ा ज्ञान मिलता है तो फटाफट चढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ लेकिन किसी को भी वो 10वीं भी पास नहीं की है, हाँ तो उनकी उनकी यात्रा थोड़ी लंबी होगी ना। होगी सब, ऑफकोर्स समझ होगी। वो जो विकल्प पढ़ा नहीं लिखा करना होता है। है। हाँ हमें हाँ तो दादा मिले हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। वही इम्पोर्टेंट है, बस मेन वही है। हाँ, तो हाँ, तो आप दादा को कहीं से भी पकड़ो, वो दादा ही है। तो ये सब जो ले, ग्ले डे पर्याय वो सब वो बातें हैं ना, तो उससे मुझे हो होता है कि दादा के कितना ये था कि जो तो उसमें उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे, मैंने कहा ना कि ये एक अपेक्षित बात को निरपेक्ष नहीं लेना है, निरपेक्ष नहीं लेना है, सही बात है। यानी सापेक्ष बात है वो। हम्म, दादा का मूल हम्म, 5 आज्ञा ही है, लेकिन दादा की बाणी तो पढ़ते हैं ना, किसी और की बाणी तो पढ़ते नहीं नहीं है। नहीं, और कोई नहीं अभी,
और कोई नहीं उधर ऐसा से नहीं है, किसी और की पढ़ेंगे तो भी कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन बात समझना है, समझना है। ठीक है? तो उसके लिए कोई झगड़ा नहीं है। सही बात है। हमेशा कोई अगर हमें कुछ कहता है तो उसके पीछे का मतलब समझ लेना है। हाँ, उनका आशय आशय पकड़ना है। ऐसा ऐसा कह के ऐसा नहीं कहा कि अभी आप ये पढ़ना बंद कर दो। हाँ। अच्छा दीपकानंद जी, एक क्वेश्चन है कि अपने दादा ने हथेली में आत्मा दे दिया, हाथमा आत्मा आपी दे दो। हाँ, एनो उसका मीनिंग क्या होता है? आत्मा हाथमा आपी दे दो, हथेली में दे दिया ऐसा। हाथ में पैसा है हाँ, तो आपको उपयोग करने में कितना टाइम लगता है? टाइम में फटाफट होता, पैसा है तो यानी फिर रोकड़ा उसका थोड़ा उपयोग कर कैश। सकते हैं ना, हाँ ठीक है? लेकिन अगर वो पैसा बैंक में है हाँ। तो बैंक में जो है आएगा कब, हाथ में आएगा कब, उसका उपयोग करेंगे कब, वो यात्रा लंबी हो जाती है ना। तो वही उसका कैश मतलब ये बैंक। होता है सही सही बात है, मतलब कि कैश बैंक। हाथ में हथेली में मोक्ष दे दिया है, हाँ यानी वो जब भी चाहो तब आप मुक्ति का एहसास कर सकते हैं, जब भी चाहिए, तो वही उसका हुआ ना कैश। अनुभव। कैश कैश बैंक ऑफ डिवाइन यस, जैसा। यस, यस, बैंक ऑफ डिवाइन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज ऑलवेज एट हैंड। कभी भी चाहो हाथ, तो हाँ, आप हाँ, कैश कर सकते हैं इसका। वही यस, मेरे दिमाग में ऐसा था कि आत्मा आप ही दी तो करेक्ट, ओके सही है। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किताब दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। દીપકાનંદજી આ મળ્યું પેલું મને જે ભૂલ થઈ ગઈ હતી ને બોલવામાં, એ વર્ડ ટુ વર્ડ મળ્યું કે આપણે જે આપતા સૂત્ર આવે છે ને આપણે જે મોબાઈલ પર રોજ બરોજમાં આપતા સૂત્ર એમાંનું છે આ એક પેલું 454, 455 અને 456 ત્રણેય વાક્યોમાં આ જ ભાવ નિંદ્રાનું જ છે. 454 નંબર લગભગ પરમ દિવસે જ આવ્યું છે, 2 દિવસ પહેલા. બોલું? नीचे नीचे लिखेलू છે, नीचे लिखा हुआ है कि वो ओरिजिनल एडिशन का है। આપતા સૂત્ર 80 એવું રોજ ओके फाइन, હા, समझ गया, ठीक है, ओके। અને એમાં 454 નું નંબર. फाइव 53। હા 553। હા, વચગાળાની જાગૃતિ છે તેને ભાવ નિંદ્રા કહી છે. 453। હા, ओके 454, 454। 454 સાહેબ. ओके,
मैं प्रवीण भाई हूँ। હા મેં પ્રવીણભાઈ હું એ વચગાળાની જાગૃતિ છે. उसे भाव निद्रा कहा। હા એને ભાવ નિંદ્રા કહી છે. संपूर्ण जागृति वो ये- सच्ची आजादी है, સચ્ચી આઝાદી. खुद ही परमात्मा स्वरूप हो गए वहां। હા क्लियर। હા नेक्स्ट लेते हैं। भाव निद्रा में यानी સ્વભાવમાં स्वभाव में नींद अगर सो गए, भाव निद्रा यानी कि स्वभाव में सो गए, હા એ સમજાયું. હા और वो निद्रा तो स्वभाव में ही सोते हैं और प्रभाव में भी सोते हैं। પ્રભાવ में सोचते हैं. आप समझे? हाँ ये समझाયું. हाँ भाव निद्रा का मतलब है स्वभाव जागृत नहीं हुआ। मैं कौन हूँ वो जानते नहीं है, उसे भाव निद्रा कहते हैं। हाँ ठीक है। हाँ ये समझाયું बरोबर. ऐसे ही हाँ એમ જ એમને એમ ऐसे ही संसार ऐसे ही संसार हेतु यानी संसार का बंध पड़ता है, वो हाँ भाव निद्रा है। अभी आप अपना प्रश्न को याद करो, आपने क्या कहा? अरे बहु मोटी भूल થઈ ગઈ સાહેબ. પછી બહુ ખોર્યું ને મળી लकड़ी ગયું. रखो, अभी लकड़ी। हाँ जरूर साहेब जरूर जरूर. जल्दबाजी मत करो पूछने में। नहीं कान पकड़ू હવે આવી फिर ભૂल. अर्थ नहीं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम हाँ तो ये नहीं साची बात कहते। साची हमारा बात. समय बहुत कीमती है, हाँ तो साची थोड़ा बात. थोड़ा अभ्यास करके, इसलिए रेफरेंस बहुत महत्व का है, तुरंत जवाब जी. मिल जाता है। हाँ हाँ? પછી આ જે છે ને એ કીધું ને અમને એમ ને એમ સંસાર હેતુ બંધાઈ જાય છે તેને ભાવ નિંદ્રા કહી. બરોબર ને? એમને એમ સંસાર હેતુ उसका मतलब क्या है? तो सो गए, कुछ भी किया तो भी वो कर्म बद्ध पड़ता है। उसको बंद पड़ता है. हाँ 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 बरोबर. कर्म बंध वही बंधन है, वही पड़ी જાય છે. बरोबर. हाँ उसे भाव निद्रा कही जाती है। ठीक है। हाँ હવે સરસ સમજણ પડી. બરોબર. સોરી સાહેબ હવે નહીં जय ભૂલ કરું. सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. જય कि हमारा समय हुआ है, कोई प्रश्न नहीं है। जय सच्चिदानंद से मंत्र फॉलो करेगा। नमो हाँ जी. वितरागाय, નમો વિતરાગાય, नमो अरिहंताण, નમો અરિહંતાણમ, नमो सिद्धाणम, નમો સિદ્ધાણમ, नमो आयरीयाणम, નમો આયરિયાણમ, नमो वत्सायाणम, નમો વત્સાયાણમ, नमो लोये समसाहणम, નમો લોયે સવ સાહુણમ, ऐसो पंच नमस्कारो, હેસો પંચનમોકારો, सर्वपावपणासनो, સવ પાવપણાસણો, मंगलाणं च सौवेसिं, મંગલાણમ ચ સવ્યેસિમ, परमं हवै मंगलम्। પડમમ હવૈ મંગલમ. भगवते वासुदेवाय। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमः शिवाय। ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. कल का प्रोग्राम संडे शिविर, आनंद विद्या मंदिर में शिविर का दूसरा दिन है। कल सुबह 6:30 बजे हमारी रेगुलर प्रातःविधि जूम पर होगी। सुबह एक मिनट, सुबह 10 बजे से आज की तरह सत्साधन होगा। 10:30 से ग्रुप वाइज सत्संग शुरू होंगे। 10:30 से 11:30 एक क्लास, 11:30 से 12:30 दूसरा क्लास, 2 से 3:30 कीर्तन भक्ति और गरबा है, और
4 से 5:30 बजे तक फिर से 2 क्लास होंगे, 45 मिनट के 2 क्लास, और फिर 5:30 से 6:30 कॉमन सत्संग, 6:30 बजे आरती और प्रसाद। रात को 9 बजे रेगुलर वर्ल्ड वाइड सत्संग कल होगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद संजीव भाई, ज्योति बहन, जय जय सच्चिदानंद। दिव्या, सच्चिदानंद। दिव्या सर्दी सारी થઈ? આપણા અત્યારે વેકેશન છે, જય તું દવા લે છે કે નહીં? મટી ગઈ? મટી ગઈ, વેરી ગુડ। જય સચ્चिदानंद કુમુદબેન, ગીતાબેન, જય સચ્चिदानंद। અનિલજી, જય સચ્चिदानंद। સચ્चिदानंद। जय सच्चिदानंद सुनीताबेन, पंकजभाई, जय सच्चिदानंद सुरेशभाई, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमस्कार। जय सच्चिदानंद दीपकभाई, जय अमीबेन, जय सच्चिदानंद कीर्तिबेन, जय सच्चिदानंद गीताबेन, मुंबई, जय सच्चिदानंद कांताबा, जय सच्चिदानंद कंचन भाई, नलिनीबेन, जय सच्चिदानंद डॉक्टर सरलाबेन, जय सच्चिदानंद जय सुगनाबेन, जय सच्चिदानंद पूर्णिमा बाप, राजू, सच्चिदानंद रेणुकाबेन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद सुरिंदरबेन, गौतम जी, जय सच्चिदानंद।